It's been 4 days since a Dalit basti was burnt down by a 500-strong violent mob in Uttar Pradesh, in Jaunpur to be precise. Homes were razed, livestock set on fire, and lives shattered. But if you had not heard about it, well, do not blame yourself, because there has been an absolute eerie silence over this brutality on Dalits. And it might have to do with the fact that the main accused in this is Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav's close aide. Also, that this particular attack was by a Muslim mob on a Dalit basti. So it doesn't really fit into that entire narrative of upper caste oppression of Dalits in India. Javed Siddiqui is the main accused in this case, who's not just been arrested for attempt to murder, rioting, among other charges, but also the National Security Act. You're watching the News Hour at 10, debate number 2 on Times Now, Super Prime Time. NPA National Spokesperson of the BJP, Rajiv Pratap Rudy, continues with us. We are joined by Dr. Udit Raj, a former Member of Parliament and National Chairman of All India Confederation of SC/ST Organisation, Member of the Congress, and Sunil Singh Yadav, Spokesperson of the Samajwadi Party. I want to start by asking you, Mr. Rudy, you know, it's funny. Actually, it's more tragic than funny, because last week a Dalit boy was killed by upper caste members of his village in Amroha. It was all over. Everyone spoke about it. Everyone condemned it. So Vikas Jatav gets attention when the accused is Horam Singh. Why is it that Rajesh doesn't get any attention when the accused is Javed Siddiqui? You are asking from me? Mr. Rudy. Or you are asking from Mr. Rudy? Padmaja, this incident is heart-rending, and I heard that young girl speaking about how it has been. It looks more of an organized action and a crime and a rioting. And it is worse because still the Dalits, after 70 years of independence, are treated like this. And this is a matter of concern. We should condemn this whole incident in the severest terms. I have not heard anything from Mayawati, who's supposed to be the protagonist and the person who hails about the Dalits. It's us, and we feel very strongly what has happened, and I'm sure action would be taken. And it looks like it has been perpetrated politically. So Dalits being castrated by a particular community, which sounds very, very, very absolutely. And you know, you haven't heard from Mayawati. So I just have to add. You haven't heard from Mayawati ji. You haven't heard from Chandrasekhar Azad Ravan. And you also haven't heard from the General Secretary East of the Congress. Incidentally, Jaunpur falls bang in the middle of the area under her control. Dr. Udit Raj, you're from the Congress. Why is it that we've heard nothing from your party? Don't Dalit lives matter to you now? Let me tell you that Dalit must be brought to the book, and this is our demand. I have already demanded it. And this is an isolated case, not out of Sir, suspects have been brought to book. मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रही हूँ, उदित राज जी, एक सेकंड. मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रही हूँ. आप कांग्रेस के एमपी रहे हैं. मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप कांग्रेस के नेता हैं, आपकी नेत्री उत्तर प्रदेश में क्यों इसके बारे में चुप है जब दलितों पे हमला हुआ है? मैं इनफैक्ट आपको एफआईआर से पढ़ करके सुनाना चाहती हूं, क्योंकि मैं जानती हूं आपको हिंदी भी अच्छे से आती है. एफआईआर में मैं आपको बताती हूं कि किस तरीके से ये क्राइम कमिट किया गया है. यहां पर लिखा है, वसीम पुत्र अज्ञात तथा 20-25 अन्य साथियों के साथ एक साथ होकर समूह बनाकर लाठी और असलहे के साथ मेरी दलित बस्ती में दहशत बनाने वाला माहौल पैदा किया, गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी देते हुए कहा, and I know this is an offense. I'm sorry to use this word on TV, but I'm reading out from the FIR. Also to underline to you, उदित राज जी, कि किस तरीके का ये अटैक था. ये भीड़ दलित बस्ती में आई और उन्होंने कहा कि चमार सालों तुम्हारी बस्ती में आग लगा देंगे, कोई जिंदा ना बचने पाए. फायर करते हुए, घरों में घुसकर मारपीट करते हुए, तोड़फोड़ करके उन्होंने दहशत का माहौल बना दिया. फिर भी एक शब्द नहीं सुनाई दिया. उदित राज जी, क्यों?
जातिसूचक टिप्पणी, मारने की धमकी, गोलीबारी। Will you listen me? बताइए। In Karnataka also an incident happened today. Yeah, that has been reported in Hindu. About that also we have not read. It has become order of the day. What happened is that I see it. You're saying it's become so common that you cease to react to You are it. not allowing me to speak. You are not allowing me to speak. You let me speak. I see it as a crime, heinous crime. They must be brought to the book. But there every day such incident had happened. Even in Gorakhpur yesterday happened when Mr. Yogi has intervened in that matter. उदित राज जी, मैं आपसे बहुत स्पेसिफिक कह रही हूँ कि आपकी पार्टी की चुप्पी क्यों है इस मामले में, जब इस तरीके का अटैक हुआ है पूरी बस्ती को खत्म करने की, और जहां पर अटैकर्स बोल रहे हैं कि कोई जिंदा ना बचने पाए। आप ये बताइए, जब मैं आपसे कह रहा हूं कि कर्नाटक में हुआ, गोरखपुर में हुआ, then you are making an agenda. Why are you not discussing about that? What happened in Karnataka yesterday? What happened in Gorakhpur? मैं आपको बता रही हूँ ये घटना जो कि 3 दिन पहले की है, अभी तक कुछ नहीं सुनने में आया है। कर्नाटक को आज की बातें में 3 दिन बीत गए, अभी तक आपसे कुछ नहीं सुना सर, ना आपकी नेत्री से कुछ सुना। क्यों? अगर अरेस्ट नहीं होता जौनपुर के मामले में तो मैं बेशक रूडी जी से पूछती कि क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि होना चाहिए। Mr. Udit Raj, please do not, revert to a very tried and tested tactic of saying कि आप हमसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं। मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि इस घटना की बिल्कुल भी निंदा क्यों नहीं हुई है, क्योंकि ये राजनीतिक तौर पे आपके लिए कन्वीनियंट नहीं है। Not only this incident, I am telling you about the incident of Karnataka, incident of Gorakhpur. Why have you not? Because arrests have happened, sir. Arrests have happened. आपको गोरखपुर याद आ रहा है, आपको कर्नाटक याद आ रहा है, आपको जौनपुर क्यों नहीं याद आ रहा है? क्योंकि आपके लिए वहां पर अपर कास्ट लोअर कास्ट का नहीं है। That means what is your agenda? I have no agenda. I have no agenda. My agenda is very simple: to ask you questions. To ask you questions and raise the question about why there is a selected episode which is picked out, condemned and highlighted. What made you to select this case? I will tell you. That's a very good question. That's an excellent question. I will tell you what made me select this case. मैंने ये केस इसलिए सिलेक्ट किया है उदित राज जी, क्योंकि जब भी इस देश में there is an attempt to try and project as if all upper castes are pushing down Dalits और उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि ये एक अपर कास्ट और दलित का क्लैश है। That suits everyone. But the moment you say that हाँ दलित की बस्ती एक मुसलमान मॉब ने जलाई है, it doesn't suit you. So nobody talks about it. Which is why I picked this up and I said this also happens. आप मेरे को बताइए, आपने अमरोहा क्यों पिकअप किया? आप मुझे बताइए उदित राज जी, आपने अमरोहा क्यों पिकअप किया? अमरोहा आपके लिए क्यों इतना जरूरी था? सर, I answered your question. Now you answer me. Why did you think it was important for you to react to Amroha, but you didn't react to Jaunpur? You should have taken all incidents. Even in Tamil Nadu it happened. Rajiv Pratap Rudy, you will not answer my question. You will not answer my question because when it's a Thakur-Dalit clash, it fits into your narrative. Padmaja, can I come in? Yes, Mr. Rudy. I think I should suggest. Padmaja, should I come in? Yes. Mr. Udit Raj has been a member of Parliament of the BJP. When he was denied a ticket, he moved to the Congress. So now he's a Congress leader. And he's raising something about Karnataka, he's raising something about Gorakhpur, where he talks about atrocity on Dalits. Well, he should talk about Gorakhpur, he should talk about Karnataka, but if there is an incident or an episode which has happened on the Dalits of Jaunpur, why as a Dalit leader, he is not, he's a Dalit face, he was in the BJP as Dalit face, he has gone to the Congress as a Dalit face,
he was in service as a Dalit phase. Why would he not speak for the Dalits of Jaunpur? This is my question. It's not that he is talking about Karnataka. If he's a votary of the Dalits, whether in Karnataka or in Tamil Nadu or in Madhya Pradesh, why is he not with the Dalits of Jaunpur talking for them is a basic question which he needs to answer. Why is so selective about his Dalitism? And this is one question which I think you should ask him. Go on, Mr. Why Udit Raj. is he selective? He should be equal. Dalits are more important for him. This you should answer. Go on, you sir. should ask this. It's out of context, out of place, but you are saying that if I had spoken about other incident and not spoken about this, then the charges would have been labeled against me. Therefore, so many incidents happen every day. It's not necessarily that we speak on all issues. Hundreds of issues are there. So why have you not? If what happened in America, the Gora, whites in the world, all over the world, are fighting for them. But why not upper caste here in our country? And if your concern is there, then of course... No, sir, when you say, exactly, you are absolutely correct when you say so many incidents happen in our country. Why am I picking on this? The same can be said of why you pick on the murder of a Dalit boy in Amroha, when at that point, and highlighted it as a caste atrocity, when the police was on record saying that it was a dispute over money. But no, at that time, political parties said, nah, this is a caste atrocity. What has happened now? Now it's not a caste atrocity. आप बताइए मेरे को, सुनील यादव जी, इस कास्ट अट्रॉसिटी के लिए क्या अखिलेश यादव जी ने उन अपने पार्टी के सदस्य को निकाल दिया है, जावेद सिद्दीकी को, जिनके ऊपर रासूका लगाया गया है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट? उनके ऊपर क्या चार्जेस है? अनलॉफुल असेंबली, राइटिंग, अटेम्प्ट टू मर्डर, SC/ST एक्ट एंड नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। क्यों है आपकी पार्टी में वो भी? देखिए पद्मजा जी, मैं एक बात ही बिल्कुल स्पष्ट बोलूंगा, क्योंकि झगड़ा पहले बच्चों का खेलने को लेकर के हुआ, ये आजमगढ़ की घटना, उसके बाद घटना बढ़ी। देखिए ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कहीं पर भी कानून व्यवस्था अगर बिगड़ रही हो तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और सुनील यादव जी, यहां पर ये आपके लिए लॉ एंड ऑर्डर इशू बन गया। आपको पता है कि अमरोहा की घटना भी पैसे के ऊपर झगड़ा था। ये पुलिस का कहना है कि पैसे के ऊपर खटपट हुई थी। वहां पर आपने कहा नहीं, ये जातिवाद का मामला है। अब यहां पर जो मैं आपसे पूछ रही हूं, आप कह रही हो हाँ बच्चों का झगड़ा था। बच्चों का झगड़ा नहीं था सर, दलित बस्ती पे हमला हुआ और उनको जाति सूचक टिप्पणी करके बोला गया कि तुम लोगों को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जाति सूचक टिप्पणी की गई, बच्चों का झगड़ा ही नहीं था। आप बताइए। मैं बोलूं? और जावेद सिद्दीकी थे उस मॉब में। नहीं, ठीक बात है, मैं कह रहा हूं देखिए, कानून कोई भी तोड़ेगा, अपराध कोई भी करेगा, वो किसी दल से हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि कानून अपना काम नहीं करेगा। देश तो संविधान से कानून तो कर ही रहा है सर, अरेस्ट तो वो हो गए। आपकी पार्टी के सदस्य हैं, आप कब निकाल रहे हैं? आप कब काम करेंगे? लेने दीजिए। कानून ने तो मुख्यमंत्री ने काम कर लिया, आप कब काम करेंगे? समाजवादी पार्टी कब काम करेगी? आप हमारा उत्तर सुनेंगे? बोलिए, हमारा जवाब सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि ये घटना निंदनीय है, वो आजमगढ़ की हो या जौनपुर की हो, और मुख्यमंत्री जी ने इसमें गंभीरता दिखाई है, ये अच्छी बात है। लेकिन सवाल यही है कि क्या 3 साल से अधिक की सरकार में ये पहली घटना है योगी सरकार की दलित पर? क्या सहारनपुर पर बोले योगी जी? क्या बुलंदशहर पर बोले? क्या अमरोहा पे बोले? क्या अभी लखनऊ की राजधानी में PGI थाने में दलितों को मुंडन करके उनको जूतों की माला पहना करके उनको घुमाया गया, उस पर योगी जी बोले? क्या प्रतापगढ़ में अभी कुर्मी समाज के लोग बोले? तो वो इस पे भी नहीं है, सिर्फ एक्शन लिया है। और जहां तक कि ये सारी घटनाएं आपने गिनाई हैं, इन सब में मैं आपको बताऊं किस किस को अरेस्ट किया है। जो अरेस्ट सबने किया है। उन्होंने जो एक्शन आजमगढ़ जौनपुर में लिया, वो कानपुर देहात पे क्यों नहीं बोले? वो एक्शन कानपुर देहात में कितने लोग अरेस्ट हुए मैं आपको बताती हूँ।
चलिए हाँ बताइए, आप गिनाना चाहते हैं कि कौन कौन से एपिसोड्स हुए हैं? कि ये भी बताइए कि प्रतापगढ़ में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा और एक मंत्री के सर आप ये नहीं बता रहे ना, आप कह रहे हैं वो इस पे बोले कि नहीं, उस पे बोले कि नहीं, सच बात है वो इस पे भी नहीं बोले, पर उन्होंने एक्शन सब पे लिया है। आपका कहने का आशय क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं, आप वो बताइए। हम अन्याय करने वाले के पक्ष में खड़े हो जाएं। हमारा नेचर भारतीय जनता पार्टी जैसा नहीं है। हम तो कह रहे हैं कानून अपना काम करे, और लेकिन मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश की सभी अरे सुनील यादव जी, नजरिए से कानून का काम तो मुख्यमंत्री करेंगे, आप उनको पार्टी से कब निकाल रहे हैं ये बताइए। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि ये तो फैसला पार्टी करेगी, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं ना कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने गलत किया। हम तो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने और इस तरीके की कितनी सुंदर बात यह है कि जब आपने अलायंस किया था उत्तर प्रदेश इलेक्शन में और बुआ और भतीजा साथ आए थे, तब तो आप दलित और यादव वोट साथ में मांग रहे थे। अब एक आदमी को आप रखेंगे जो कि दलितों को जाकर के पीटता है। चलिए राजीव प्रताप रूडी जवाब देना चाहते हैं, बोलिए। देखिए मैं अभी तक तो मैं सामान्य रूप से उदित जी से पूछ रहा था, ये घटना में विच्छेद कर रहे हैं कि फलाने की जगह नहीं हुआ, कर्नाटक में नहीं हुआ, फलाने जगह नहीं हुआ, लेकिन इनको जौनपुर में दरअसल पद्मा जी आपने इनको बहुत बुरी तरह से घेर दिया है, और पूरे चर्चा में दर्शकों को भी अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि ये सियासत क्या है, ये दरअसल ऐसा क्यों बोल रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के राजनीति में इनकी प्रासंगिकता तब तक बनी रहेगी अगर ये एक जिस समाज के अखिलेश यादव हैं अगर वो हो, और जिस समाज के लोगों ने ये घटना की है ये उनका समीकरण है। दूसरी तरफ अगर दूसरे जो आप समीकरण देख रहे हैं उसमें दलित और दलित के ऊपर ये दोनों ये समीकरण है, ये राजनीति है। इनका दर्द दलितों के लिए नहीं है, और इनको इस बात का भय हमेशा सताता है कि कम से कम जो समीकरण ने प्रहार किया है, जिसको कह सकते हैं, और जो समीकरण के अखिलेश यादव है, ये समीकरण बनेगा तो हम जिंदा रहेंगे। अब तो वो मायावती के भी दलित को जो मायावती के खाते में था, ये पॉलिटिक्स है, इसीलिए सुनील यादव से दलित के बारे में नहीं निकल रहा है। ये इसमें प्रोटेक्शन है, ये लोग घबरा गए हैं कि ये दलितों पर प्रहार हम आपको समीकरण समझा रहे हैं, फंस गई है। अरे आप रुकिए ना, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अच्छी बात कर रहे हैं, वहां नहीं बोलते। मैं तो कह रहा हूँ आप अच्छी बात कर रहे हैं। अब हमारा पक्ष सुन लीजिए, लोग हैं अब दर्शक देख रहे हैं तो हमारा पक्ष सुन लीजिए। आपने समीकरण समझा दिया। लखनऊ राजधानी में अभी 4 दिन पहले पीजीआई थाने में जो घटना हुई उस पर आप क्यों मौन हैं? कानपुर देहात में जहां दलित समाज बाबा साहब का कार्यक्रम कर रहे थे और बड़ी जातियों के लोगों ने उनकी महिलाओं को, उनके बच्चों को पीटा, उस पर आप क्यों चुप हैं? प्रतापगढ़ में आप क्यों चुप हैं? हमारा सवाल केवल इतना है कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी केवल जाति और धर्म देख करके एक्शन लेंगे, घटना देख करके एक्शन नहीं लेंगे? क्या वो तय करेंगे कि हमको कहां पे अधिकारियों अरे सुनील यादव जी, मैं आपको बता रही हूँ कि जाति और धर्म देखकर एक्शन नहीं हुआ है। मैं आपको सारे एपिसोड जहां आप ही बता रहे हैं, जहां अमरोहा में अपर कास्ट के लोग थे वहां पर भी अरेस्ट हुआ है, जहां पर बानसकांठा में एक दलित दूल्हे पर पत्थरबाजी हुई थी वहां पर भी लोगों को अरेस्ट किया गया है। मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूं कि आप कब एक्शन लेंगे? लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स, बट व्हेन विल समाजवादी पार्टी टेक अ कोर्स? अब आप सोचिए कि घटना के कितने 2 दिन बाद सरकार जागी है, तो क्या आपने एक बार भी राजीव प्रताप रूडी जी से पूछा कि योगी जी 2 दिन क्यों सोते रहे? देखिए अब आप फिर गलत है। एफआईआर हुई है 9 तारीख को, 2 दिन बाद तो रसूखा लगा है। 2 लोग पहले अरेस्ट हो गए थे, 35 लोग अब जाकर के अरेस्ट हुए हैं। परेशान कर रहा है या कोई किसी को मार रहा है, किसी का घर जला रहा है, किसी को गाली दे रहा है, देखिए तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। I think the facts have been amply laid out and the spokespersons have also revealed what their real intentions are, where they stand. सुनील यादव जी और उदित राजीव बस आपसे ये चीज पूछना चाहती हूं कि 2 साल बचे हैं उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस को, खास तौर पर समाजवादी पार्टी अगर दोबारा अलायंस करती है बीएसपी से, तो फिर आप जावेद सिद्दीकी को अपनी पार्टी में रख करके कैसे उस अलायंस में लोगों से जाकर के वोट मांगेंगे उत्तर प्रदेश में? बस इसका जवाब भी दे दीजिएगा। एनी हाउ, द गुड थिंग इज दैट पीपल हैव बीन अरेस्टेड, देयर शुड बी नो सिलेक्टिविज्म, क्राइम इज अ क्राइम।
Let's not look at it through the angle of religion and caste, depending on our convenience and our politics. That's the point I wanted to make. Thank you very much, all gentlemen, for having joined me on the News Hour agenda. Thank you very much for tuning in. I'll see you on Monday.